Good morning, children. Today we are going to start with the third chapter of history, that is Delhi Sultanate. Okay, before Delhi Sultanate, we have read about the regional kingdoms and we have come to know that there were many dynasties that ruled India during early medieval period. है ना? Now, if you can see that in the north, Rajputs were there, Ghaznavids were there, Ghurids were there, है ना? Then in the south, Palas, Gurjara, Pratiharas were also. They all were powerful, है ना? And in Deccan also we can see that there were Rashtrakutas and few smaller kingdoms were also there. Palwas, Pandyas, and Cholas were the dominant powers in the southern part. Now, after these regional kingdom, now we have come to the Delhi Sultanate period, and this period lasted from, you can say it about 1206 to 1526, before the beginning of the Mughal period. So Delhi was the capital of the Sultanate period, and they conquered the large part of Indian subcontinent. And under this Sultanate period, there comes the 5 dynasties. So we'll read it out. Okay, before we start with the chapter, let us read about the takeoff. Dash was the founder of the Gurjara Pratihara dynasty, that was a Nagabhatta. Prithviraj Chauhan was defeated in the second battle of Taran. The Rashtrakutas constructed the Kailasha temple at Ellora. Okay, and here in the side, on the right hand side, it is written warm up. So it is asking, Dad, why do we have to move to other places? He's asking. Okay, my friends are all here. Why they wanted, his dad must have decided to move to another place. So that child doesn't want to move from the own place to another place. So actually his father is telling that his work, because of work, okay, he wanted to move from that place. So the question around here is, have you ever moved from one town to another? Okay, so this is a discussion thing which we can do in the class also. So क्यों मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? जस्ट टू बिकॉज ऑफ वर्क, या तो हमें कोई वर्क होता है या फिर वी वांट टू ट्रेवल, है ना, जस्ट टू एंजॉय द प्लेसेस, ऐसे भी हो सकता है. सो देयर आर सम रीजंस टू मूव. ओके, नाउ before we start with the chapter, we have read about all these things. Now we can begin with the chapter. कि early 12th century Delhi was an important kingdom, और जो तोमराज और चौहानाज थे, they established Delhi as an important commercial city. ठीक है, तो तोमराज और चौहान्स के टाइम में एक दिल्ली जो है कमर्शियल सिटी था. अब जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को चौहान को उसने डिफीट कर दिया. ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कौन था? एक चौहान रूलर था. किस में डिफीट किया था? सेकेंड बैटल ऑफ टैरन में किया था. ठीक है, और 1202 CE, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ टैरन में तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को डिफीट किया था, लेकिन सेकेंड में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था. CE में, कॉमन एरा में, मोहम्मद गौरी ने बंगाल को एनेक्स कर लिया था, मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया था, और अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर ली थी इंडिया में. और अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के बाद फिर उसने अपनी एक ट्रस्टेड स्लेव था उसका और कॉम्पिटेंट जर्नल था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको अपनी इंडियन टेरिटरी दे दी थी. ही हिमसेल्फ डिड नॉट स्टेड हियर, ही गेव हिज टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी टू हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक. और मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद, जब उसकी 1206 में डेथ हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपना टाइटल सुल्तान का ले लिया. एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी. मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. और नियर अबाउट 1 सेंचुरी के लिए ये डायनेस्टी चली, और उसने अपनी दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया. जो स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी, दोनों एक ही बात है बेटा. साली स्लेव डायनेस्टी बोलो या मामलुक डायनेस्टी बोलो, एक ही बात है. ये सबसे पहली डायनेस्टी थी जो आप 5 डिफरेंट जो डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो दिल्ली सल्तनत को फॉर्म करती हैं. तो मामलुक डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी. ठीक है, ये आई. और बोथ खिलजी और तुगलक्स जो थे दोनों है टर्किश ओरिजिन के थे. बाद की जो डायनेस्टी थी वो सैयद और लोदी डायनेस्टी थी, ये अफ़गानिस्तान से आए थे, ये अफ़गान ओरिजिन के थे. सो इन ऑल ये डायनेस्टीज़ को आप MKTSL वर्ड एक याद कर लेना. M फॉर मामलुक, K फॉर खिलजी,
T for तुगलक, S for सैयद एंड L for लोधी डायनेस्टी। तो MKTSL जो है इट फॉर्म्स द सल्तनत पीरियड। तो जितने भी सल्तनत डायनेस्टीज़ हैं वो सारी MKTSL में कवर अप हो जाएंगी। तो पहले हम M से स्टार्ट करते, दैट इज़ मामलुक डायनेस्टी, जिसको आप स्लेव डायनेस्टी भी बोलेंगे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। 1206 से लेकर 1210 का पीरियड था, जो कि 4 ईयर्स का था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडियन टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया और इनके ऊपर अपनी नदर्न स्टेट्स में अपनी पावर गेन कर ली और सुप्रीमेसी शो कर दी इसने। जो किंगडम एस्टैब्लिश बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक मार्क द बिगनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज जो था, ही वाज वेरी जनरस रूलर और ही वाज नोन एज लक बख्श, कि लाखों को बख्शने वाला। ठीक है, मतलब वो जनरस था इसलिए बख्श देता था। तो उसने ही बिल्ट क्वातुल इस्लाम मॉस्क, है ना, क्वातुल इस्लाम मॉस्क बनाया उसने, और द कुतुब मॉस्क। ठीक है, इसको एक ही बात, क्वातुल इस्लाम मॉस्क बोलो या कुतुब मॉस्क, एक ही बात है। दोनों को एक ही नाम, दो नाम से जाना जाता है एक ही चीज़ को। ये ओल्डेस्ट मॉस्क है दिल्ली में। और एंड ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिगिनिंग कर दी थी बनाने, कंप्लीट नहीं किया था बेटा, बिगिन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश जो है, उसका जो सन इन लॉ था वो राजा बनता है। वो नियर अबाउट 25 ईयर्स के लिए रूल करता है। 1211 से लेकर 1236 CE कॉमन एरा का टाइम है। और 1211 में और वो स्लेव डायनेस्टी का रूलर बन जाता है। लेकिन उसका जो रेन था वो बहुत ही प्रिकैरियस था, क्योंकि इट वाज अपोज बाय मैनी इन द किंगडम। ठीक है, बहुत सारे लोग उसको अपोज करते थे, है ना। प्रिकैरियस मीन्स इतना अच्छा तरीके से नहीं चल रहा था उसका, इल्तुतमिश का, क्योंकि बहुत सारी उसने वॉर, बहुत सारी एग्जीक्यूशन को जन्म दिया उसके किंगडम ने। और उसने अपनी जो पावर है उसको कंसोलिडेट करने के लिए मैनेज कर दिया और बहुत सारी टेरिटरीज़ को दोबारा से रीगेन कर लिया, जो कि जब वो अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहा था उस समय जो उससे टूट गई थी। उसने जो है रिबेलियंस को सप्रेस किया और बहुत सारे राजपूत रूलर्स को, जैसे उज्जैन के, रणथंभौर के, इनको डिफ़ीट करता गया। और बंगाल, बिहार को अपने कंट्रोल उसने ले लिया था। जो उनका कोर्ट क्रॉनिकलर था मिनाज सिराज, उसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में हमें अकाउंट्स वो देता है उनके, मतलब उन्होंने हमें काफ़ी सारी नॉलेज इल्तुतमिश के बारे में दिया था। नेक्स्ट आ जाती हैं रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का पीरियड 1236 से लेके 1240 कॉमन एरा का है। आप इसे कह सकते हो आपका कि 4 साल का टाइम। तो रज़िया जो थी वो इल्तुतमिश की डॉटर थी। तो ये एक ऐसी वुमेन रूलर थी जिसने दिल्ली सल्तनत का जो है मतलब थ्रोन असेंड किया था। उसके न पहले ना उसके बाद में किसी वुमेन ने कभी भी दिल्ली सल्तनत का जो थ्रोन था उसके ऊपर राज्य नहीं किया था। उसको इसलिए चूज़ किया गया एज अ रूलर क्योंकि वो अपने ब्रदर से ज़्यादा कॉम्पिटेंट थी। ठीक है, बहुत ही ग्रेट वॉरियर थी वो, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रूल किया, लॉ इस्टेब्लिश किए और लॉ एंड ऑर्डर अपना इस्टेब्लिश किया अपने किंगडम में। क्योंकि सोसाइटी जो थी मेल डोमिनेटेड थी, बहुत सारे नोबल्स को वुमेन का रूल करना एक्सेप्टेड नहीं था, इसलिए रज़िया को मार दिया गया एक बैटल में विद द नोबल्स हु कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट, जिन्होंने उसके अगेंस्ट षड्यंत्र चलाया। और जो मिन्हाज सिराज थे उसने भी रज़िया की क्वालिटीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया था। उसने कहा था कि वो बहुत ही रिमार्केबल क्वीन थी। ठीक है, लेकिन जो रूल था वो ट्रेडिशन के अगेंस्ट था और गॉड की विल के अगेंस्ट था, क्योंकि मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी हुआ करते थे। तो ये ग्रेव ऑफ रज़िया सुल्तान है, आपकी पिक्चर बनी हुई है साइड में, देख सकते हैं आप अपनी बुक्स में। फिर उसके बाद रज़िया के बाद आते हैं बलबन का पीरियड 1246 से लेके 66 था, नियर अबाउट 20 ईयर्स हो गए। ठीक है,
और रज़िया की डेथ के बाद बहुत सारी पावर के लिए स्ट्रगल्ड होने लगी। तो जो रज़िया का ब्रदर था नज़रुद्दीन मोहम्मद, वो इनएक्सपीरियंस था, इसलिए जो बलबन था उसने अपने आप को वहाँ का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था। तो बलबन वैसे बहुत ही रुदलेस रूलर था, मतलब अच्छा रूलर नहीं था, अच्छा बिहेव नहीं करता था। उसका पहला एम था कि वो नोबल्स की पावर्स को क्रश कर दे। उसने एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम स्टार्ट किया जो मतलब उनको बता सके कौन से नोबल्स जो हैं लॉयल हैं, ठीक है, कितने लॉयल्स हैं नोबल्स जो उसके राज्य में है। और उसने एक सजदा और पायबोज की प्रैक्टिस को भी स्टार्ट किया बलबन का। याद रखना कि पायबोज और सजदा की जो प्रैक्टिस थी वो बलबन ने स्टार्ट करी थी। सजदा मीन्स आप नाम से ही क्लियर हो जाता है, सजदा हो गया कि आप किसी को, जब किसी किंग को आप सुप्रीम मानते हो तो आप उसके लिए झुकते हो, दैट इज़ नोन एज सजदा। पायबोज मीन्स आपको नीचे झुक के उनके पैरों को मतलब किस करना, ये पायबोज था। तो इस तरह की प्रैक्टिस सजदा और पायबोज जो थी बलबन ने इंट्रोड्यूस करी थी ताकि वो अपने स्टेटस को ऊंचा दिखा सके बाकी रूलर्स को। लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस थी, ये प्रिंसिपल्स जो थे इस्लाम के, उसके थोड़ी सी अगेंस्ट थी। तो बहुत सारे जो बलबन ने बहुत सारे और मेजर्स भी अपने लिए थे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसने राजपूत्स को सप्रेस किया, ठीक है। उसने मंगोल जो इन्वेजन्स थे उनको चेक किया, क्योंकि मंगोल्स कभी भी किसी भी समय अटैक कर देते थे। तो लेकिन बलबन की जो डेथ थी 1287 में हो जाती है, और उसका रूल जो है उसके बाद कई वीक रूलर्स उसको फॉलो करते हैं, जैसे मामलुक रूलर, और वॉज ओवरथ्रोन बाय जलालुद्दीन खिलजी। दैट मीन्स जो मामलुक रूलर, जो लास्ट मामलुक रूलर था उसको जलालुद्दीन खिलजी ने ओवरथ्रू कर दिया। दैट मीन्स अब मामलुक रूलर के बाद खिलजी डायनेस्टी का बिगनिंग हो गया। ओके, तो इसके बाद हम चिल्ड्रन नाउ वी बिगिन विद द खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड 1290 से लेके 1296 तक था, 6 ईयर्स तक इसने रूल किया। तो ये फर्स्ट सुल्तान था खिलजी डायनेस्टी का, और यू कैन से इट ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो बहुत ही बेनोवलेंट रूलर था, हु डिड नॉट कैरी आउट स्वीयर पनिशमेंट्स, मतलब लोगों को बहुत बुरी पनिशमेंट्स नहीं देता था। आप साइड में इसमें आपकी बुक में अगर आपको विजिबल हो तो पिक्चर भी है अलाउद्दीन खिलजी की। लेकिन उसको उसके जो नेफ्यू थे उन्होंने उनको धोखा दे दिया और मार दिया, जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड था 1296 से लेके 1316 तक। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही एम्बिशियस रूलर थे, बहुत ही ब्रिलियंट जर्नल भी था। उसने अपना जो डेक्कन का जो कंकर कर लिया था अपने कमांडर, जो उसका कमांडर थे मलिक कफूर, उसकी हेल्प से। अलाउद्दीन ने एक गैरिसन टाउन बिल्ड किया था सीरी में। गैरिसन क्या होता है बेटा? जहाँ पे मिलिट्री फोर्स रहती है, ठीक है। तो उन्होंने सीरी में एक गैरिसन टाउन बिल्ड किया था ताकि वो मंगोल्स को जो भी, क्योंकि अटैक करते रहते थे मंगोल्स, तो उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। और वो हमेशा अपने सोल्जर्स की डिटेल अकाउंट रखता था। सोल्जर्स की डिटेल अकाउंट को रखने को चेहरा भी बोला जाता था, और हॉर्सेस को हमेशा ब्रांडेड हॉर्सेस रखता था, जिसको दाग बोला जाता था। तो सोल्जर्स की अकाउंट को रखने को चेहरा बोला जाता था, ब्रांडेड द हॉर्सेस की प्रोसेस को क्या बोला जाता था दाग। तो ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, दाग किसे बोलते हैं या चेहरा किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चेहरा इज़ द अकाउंट ऑफ द सोल्जर्स एंड दाग इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेस। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आपका ये देखिए किंगडम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और ये कहाँ से, जितना पर्पल पोर्शन है ये सारा अलाउद्दीन खिलजी का जो किंगडम है, काफ़ी बड़ा कर रखा उसने। वेस्ट से लेके ईस्ट तक कैसे पहुँच गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इकोनॉमिक मेजर्स, कौन से तरीके उसने यूज़ करे थे जिससे वो अपना पैसे ज़्यादा बना सके। अलाउद्दीन ने हर एक गुड्स को बेटा प्राइसेस फिक्स किए हुए थे ताकि वो सोल्जर्स को हमेशा हैप्पी रख सके। और उसने सुपरवाइजर्स भी अपॉइंट किए हुए थे
जो हमेशा ट्रेडर्स के ऊपर चेक रखते थे या मर्चेंट्स के ऊपर चेक रखते थे, ताकि वो अपनी किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस इंक्रीज़ ना कर सकें। ठीक है, वेट्स का भी, मेजर्स का भी, ठीक है, उनको चेक किया जाता था। और जो लोग चीट करते थे प्राइसेस पे या वेट्स पे, उनको बहुत ही बुरी तरह से पनिश किया जाता था, सीवियरली पनिश किया जाता था। और लैंड टैक्स भी इम्पोज होता था, कौन से एरिया में, दोआब रीजन में। और फार्मर्स को 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, मतलब जितनी उनकी टोटल प्रोड्यूस है उसका आधा हिस्सा जो था वो उनको देना पड़ता था गवर्नमेंट को, यानी कि सुल्तान को। जो लैंड जो थी कल्टीवेशन के अंडर, वो हमेशा मेजर की जाती थी, क्योंकि उनके मेजरमेंट के ही अकॉर्डिंग कितना कल्टीवेशन होता पर्टिकुलर लैंड से, उसके अकॉर्डिंग ही उनको उनका जो है टैक्स उनको लोगों से लिया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आर्ट को भी अप्रिशिएट करता था, और जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग थे, उनको भी रिस्पेक्ट करता था। जो सूफ़ी पोइट और स्कॉलर जो थे, लाइक आमिर खुसरो, वो उसके टाइम, उसके कोर्ट में जो थे उसके टाइम पे थे, वो उसके बारे में लिखते हैं। उसने बहुत सारी पैलेसेस और मॉस्क बनाए, जिसमें एक अलाई दरवाज़ा का नाम भी ये फेमस है। अलाउद्दीन की डेथ के बाद 1316 में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया, मतलब कि मतलब उस थ्रोन के लिए लड़ने लगे। ठीक है, आप लड़ाइयाँ लड़ने लगी, मैं बैठूंगा थ्रोन पे या मैं बैठूंगा थ्रोन पे। तो इस तरह की वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट, और जो पावर थी वो ग्यासुद्दीन तुगलक के हाथ में चले जाती है, जिसने कि तुगलक डायनेस्टी को फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन आपका साइड में आता है, व्हाट वर द सुपरवाइजर्स ऑफ द ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स कॉल्ड। तो ये इसका आंसर आप ढूंढ भी सकते हो, लेकिन उनको बोलते थे स्पाइज। ठीक है ना, स्पाई जो डिटेक्टिव टाइप्स होते थे ना, तो जो सुपरवाइज करते थे ट्रेडर्स को और मर्चेंट को, उनको बोलते थे स्पाइज। आगे चलते हैं इन्वेस्टिगेट में। तो इन्वेस्टिगेट में आपको बताएंगे ये कि नो वन कुड स्टेयर विदाउट हिज, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मर्जी के बिना कोई भी इधर से उधर नहीं हिल सकता था, उसकी नॉलेज के बिना। एंड वॉट एवर हैपेंड इन द हाउस ऑफ द मलिक्स एंड अमीर्स, ऑफिसर्स एंड ग्रेट मैन वॉज कम्युनिकेटेड टू सुल्तान। जो कुछ भी किसी के घर में, मलिक्स के, आमिर्स के घर में, ऑफिसर्स के घर में, या किसी बड़े लोगों के घर में कुछ भी होता था, वो सारी बातें जो हैं अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचती थी। ठीक है, तो वो दिन और रात वो अपने घरों के अंदर ही मतलब थरथराते रहते थे कि ऑन अकाउंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द पेट्रोल, कि कोई ना कोई उनको नज़र उनके ऊपर रखे हुए थे। नॉर डिड दे डू एनीथिंग नॉर अट अ सिंगल वर्ड विच वुड सब्जेक्ट देम टू रीप्रूफ और पनिशमेंट। ना ही वो इस तरह का काम करते थे, ना कुछ ऐसा बोलते थे कि जिसकी वजह से उनको पनिशमेंट मिले। तो व्हाट डू यू थिंक, ये अल-बरानी ने लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेट, उस वहाँ से हमें ये अकाउंट्स में से ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो व्हाई डू यू थिंक अलाउद्दीन नीडेड सच अ स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम फॉर हिज ऑफिशियल्स। तो अंडरस्टूड है बेटा, ऑफिशियल क्यों हम रखेंगे, स्पाई सिस्टम इतना अच्छा क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज मिलती रहेगी कहाँ पे क्या बात हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई चीट तो नहीं कर रहा है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी किस तरह का रूलर है, आप इसमें से आप बड़े अच्छी तरह से पता कर सकते हो कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, यू कैन से। स्पाई सिस्टम बहुत अच्छा था उसके टाइम पे। ठीक है, थर्ड और भी आप इसमें चीज़ें ढूंढ सकते हो। नेम अनदर रूलर इन हिस्ट्री हु हैड अ नेटवर्क ऑफ स्पाइज इन हिज किंगडम। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन और है हमारी हिस्ट्री में ऐसा रूलर जिसने स्पाई सिस्टम को अपनी किंगडम में इतना बढ़ा रखा था। अब आ जाता बाद में आपके नेक्स्ट डायनेस्टी इज तुगलक डायनेस्टी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट तुगलक डायनेस्टी। तो ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड 1321 से लेकर 1325 तक का है, तो ये भी आपका 4 ईयर्स का टाइम पीरियड है। तो ग्यासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। वो पंजाब का गवर्नर था खिलजीज के टाइम पे। ठीक है, जब खिलजीज मतलब रूल कर रहे थे उसके टाइम पे गवर्नर था वो पंजाब का ग्यासुद्दीन तुगलक। तो उसने जो है तुगलकाबाद जो सिटी है उसने ही फाइंड आउट करी है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद, इसका टाइम पीरियड आ जाता 1325 से लेके 1351 तक। सो नियर अबाउट 26 ईयर्स यू कैन से, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक असेंडेड द थ्रोन इन 1325 CE। ठीक है, तो
ही वॉज अ स्कॉलरली एंड ब्रिलियंट रूलर था, जो हमेशा इंटेलिजेंट डिबेट्स में एंगेज रहता था। और किन के साथ वो डिबेट करता था? रिलीजियस अथॉरिटीज़ के साथ। तो उसको एक तरह से जुडिशियस एंड वाइज रूलर उसको माना जाता है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन करता रहता था लर्न थियोलॉजियंस के साथ। थियोलॉजियंस कौन कौन होते हैं? जो इस्लामिक रूल को फॉलो करते हैं। तो उनके साथ जो है उनके साथ हमेशा क्वेश्चन करता रहता था, या उलेमास के साथ क्वेश्चंस करता रहता था उनके आइडियाज़ के बारे में कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, मतलब उनके अगेंस्ट उनको उनके अपोज करता रहता था। तो इसलिए सब लोग जो थे, जैसे उलेमास है ना, थियोलॉजियंस, ये सब उसके एंटागनिज्म हो गए, उसके उसके अगेंस्ट हो गए बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ हिज। ठीक है। तो वाइल ही हैड ऑल दीज गुड क्वालिटीज़, मतलब अच्छी क्वालिटीज़ तो थी कि इंटेलिजेंट था, स्कॉलर था, ब्रिलियंट रूलर था, इतनी कुछ गुड क्वालिटीज़ के होने के बावजूद, लेकिन जो उसकी एक कमी थी, जो हेस्टीनेस की, उसको जल्दबाजी रहती थी, इम्पेशंस रहता था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है उसके अगेंस्ट हो गए, अपोज हो गए उसके। ठीक है। और दूसरी तरफ जो था, ही वॉज अ ब्रिलियंट एंड हैड आउटस्टैंडिंग आइडियाज़। ठीक है, आइडियाज़ बड़े अच्छे अच्छे होते थे उसके पास, बट दूसरी तरफ ही लैक द विजन टू फोर सी द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन उसके अंदर एक ये कमी थी कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती थी उनको उनके बारे में सोचने में या उनको समझने के लिए उसको इतनी समझ नहीं थी, उसमें उसकी कमी रह जाती थी उनको इम्प्लीमेंट करने की। अगर कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करता था, उसका प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स हो सकती थी वो उनको नहीं समझ पाता था। तो ये जो आइडियाज़ उसके लिए बाद में बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए, और जिसकी वजह से वो अनपॉपुलर हो गया। ठीक है। तो लोग उसको नापसंद करने लगे।